तो मित्रों हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 10th GSCB गुजरात बोर्ड का संस्कृत का चौथा चैप्टर। फर्स्ट सेकंड थर्ड के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे आगे की वीडियो में बताया है, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश चारों लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ होगा। इन संस्कृत लिटरेरी फील्ड ग्रेट पोएट भास इज़ वेल रेप्यूटेड फॉर राइटिंग प्लेस। इन संस्कृत साहित्य में जो महाकवि भास है वो अपनी नाट्य रचना, जो वो नाटक लिखते थे, उसके लिए वेल नोन है, पहचाने जाते हैं। સંસ્કૃત સાહિત્યમાં મહાકવિ ભાસ એમની નાટ્ય રચના માટે જાણીતા છે. He has written 13 plays which are known as भास नाटक चक्रम. उन्होंने लिखे हुए यानी रचे हुए 13 जो नाटक है वो भास नाटकम के नाम से जाने जाते हैं. એમના રચેલા 13 રૂપકો નાટકો મળે છે જે ભાસ નાટક ચક્રમ નામે ઓળખાય છે. The excerpt presented here is taken from his one-act play दूध घटोत्कचम which is one of these 13. यहाँ पे આ 13 રૂપકો પૈકીના દૂધ ઘટોત્કચમ નામના એકાંકી રૂપકમાંથી પ્રસ્તુત નાટ્યાંશ લેવામાં આવ્યો છે. એમણે જે 13 પાઠ કરેલા છે, 13 રૂપક, એમાંથી एक लेवामां आव्યું છે. उनके 13 जो नाटक उन्होंने रूपक किए हुए हैं उसमें से दूध घटोत्कचम नाम का एकांकी इसमें इस पाठ में लिया हुआ है. The theme of the expert is based on the महाभारत. यहाँ पे जो ये कथा है या जो स्टोरी है वो महाभारत के ऊपर डिपेंडेड है, आधारित है. આનું કથા વસ્તુ મહાભારત ઉપર આધારિત છે. Battle of Mahabharata is going on in Kurukshetra and today Abhimanyu is unjustly killed in it. कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो गया है और उसमें अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र है उसका अन्याय से यानी सही गति से नहीं, युद्ध में हम लॉयल्टी यूज़ करते हैं, ऑनेस्टी यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे जैसे पाकिस्तानी अभी देखा है पहलगाम में हुआ, वैसे अन्याय से उसका वध हुआ है. કુરુક્ષેત્રમાં મહાભારતનું યુદ્ધ પ્રારંભ થઈ ચૂક્યું છે, તેમાં અભિમન્યુનો અન્યાયથી વધ થયો છે. Hence Arjuna is very sad and has announced to kill them who had killed Abhimanyu. So वो अर्जुन जो उसके पिता है वो बहुत ही दुखी है और उन्होंने निश्चय लिया है कि जिसने भी अभिमन्यु का वध किया है उन लोगों को वो मार डालेंगे, उनका वध करेंगे. આથી અર્જુન ભારે દુઃખી છે અને તેણે અભિમન્યુનો વધ કરનારાઓનો વધ કરવાનો સંકલ્પ જાહેર કર્યો છે. In this tragic situation, Sri Krishna thinks to try once again to prevent this war anyway. ये परिस्थिति में श्री कृष्ण भगवान अभी भी सोच रहे कि किसी भी तरह शायद एक बार भी युद्ध स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो वो एक ट्राय करने का सोच रहे हैं. આ કરુણ પરિસ્થિતિમાં હજુ પણ કઈ રીતે કોઈ પણ રીતે યુદ્ધ રોકાય તે માટે શ્રી કૃષ્ણ એક વધુ પ્રયત્ન કરી લેવાનું વિચારે છે. By putting forward the tragic incident of Abhimanyu's killing and the sorrowful situation of Pandavas in front of Dhritarashtra and Duryodhana, Sri Krishna planned to convince Dhritarashtra. અભિમન્યુના વધની કરુણ ઘટનાથી પાંડવોમાં જે શોક છવાયેલો છે તેને ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધનની નજર સામે મૂકીને શ્રી કૃષ્ણ ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવવાનો એક ઉપક્રમ આદરે છે. जो अभिमन्यु के मौत से जो पांडवों में दुख हुआ है उसको धृतराष्ट्र यानी कौरवों की ओर से यानी धृतराष्ट्र और दुर्योधन की नज़र के सामने रखने के लिए और कैसा सबके लिए दुखी है वो बताने के लिए श्री कृष्ण एक बार प्रयत्न करते हैं. He selects Ghatotkacha as his envoy and sends through him a message of treaty. जस्ट इसके लिए वो अपने घटोत्कच को दूत बनाते हैं और उनको एनवाय यानी शांति के संदेश के लिए
ભેજતે હૈ. આથી તેઓ ઘટોત્કચને પોતાનો દૂત બનાવે છે અને શાંતિનો સંદેશ મોકલે છે. But engrossed in the madness of war, Duryodhana, his companions Sakuni and others are not ready to listen the message of treaty. At last, Ghatotkacha makes them listen to the final message of Sri Krishna. પરંતુ યુદ્ધના ઉન્માદમાં ડૂબેલા દુર્યોધન અને તેના સહયોગી શકુની અને વગેરે બધા શાંતિનો સંદેશ સાંભળવા તૈયાર નથી. છેવટે ઘટોત્કચ શ્રી કૃષ્ણનો પશ્ચિમ એટલે કે અંતિમ સંદેશ સંભળાવે છે. बट युद्ध के उत्साह में डूबे हुए दुर्योधन और कौरवों और उसके शकुनी मामा और उसके पार्ट में जो उसके साथ जो है वो लोग ये शांति के संदेश को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते. तो लास्ट में घटोत्कच जो है वो श्री कृष्ण का अंतिम संदेश इनको सुनाते हैं. The interesting dialogues of Ghatotkacha and Inve with Duryodhana and Shakuni produces dramatic pleasure. દૂત તરીકે ગયેલા ઘટોત્કચના દુર્યોધન અને શકુની સાથેના સંવાદો અહીં રોચક બનાવે છે નાટકને, એનો રસ जलवाई रहे છે. जस्ट यहाँ पे जो शांति के दूत तरीके दूत के लिए गया था वो घटोत्कच और दुर्योधन और शकुनी के बीच जो बातें हो रही है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आरोपण किए गए हैं. Selecting Ghatotkacha, a son of Daimones, as a character, Bhas has successfully tried to create an impression of demonic tendency of Duryodhana on mind of audience. ये जो घटोत्कच है वो एक राक्षसी का पुत्र था हिडिंबा का. तो यहाँ पे ભાસે રાક્ષસીના પુત્ર એવા ઘટોત્કચના પાત્રનો ઉપયોગ કરીને પ્રેક્ષકોના માનસ પટલ ઉપર દુર્યોધનની રાક્ષસ વૃત્તિને સ્થાપવાનો सफल प्रयत्न કર્યો છે. यहाँ पे जो राक्षस है उसको एज अ दूत, शांति दूत तरीके भेजना और उसको सिलेक्ट करना, उसकी बातें, वो सब भास ने बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है कि वो राक्षस होके भी शांति दूत लेके जाता है, जबकि मनुष्य दुर्योधन एक मनुष्य है, वो अपनी राक्षसी वृत्ति नहीं छोड़ रहा है. तो वो राक्षस वृत्ति को मनुष्य कैसे सही करता है वो यहाँ पे बताया गया हुआ है. On one hand, Ghatotkacha, son of Daimones, behave like a man, and on other hand, Duryodhan, the son of a human, behave like a demon. जहाँ जैसे मैंने कहा वैसे यहाँ पे जो રાક્ષસ મનુષ્યનો પુત્ર છે દુર્યોધન એ રાક્ષસીય વર્તન આચરે છે, જ્યારે રાક્ષસીનો પુત્ર ઘટોત્કચ માનવીય વર્તન આચરે છે. यहाँ पे एक तरफ राक्षसी का पुत्र घटोत्कच वो मानवीय वर्तन, मानवीय बिहेव करता है, जबकि मनुष्य का पुत्र जो दुर्योधन है वो राक्षसी बिहेव करता है. भास with his skillful dramatic art has created beautiful contradiction here. આ સરસ વિરોધાભાસનો ભાસે પોતાની अनुपम नाट्य कलाના બળે અહીં ઊભો કરી આપ્યો છે. जस्ट यहाँ पे ये दोनों का जो अपोजिशन है, मनुष्य का बेटा राक्षस और राक्षस का बेटा मनुष्य एज ए शांति दूत, वो दोनों जो विरोधाभास है, अपोजिशन है, उसको भास ने बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है. At the end, the misbehavior of Duryodhana becomes the cause of destruction of Kuru race, the whole of his race. The fact one who does not accept the proposal of compromise ruins himself and his family is shown through this play. દુર્યોધનનું આ વર્તન છેવટે તો આખા કુટુંબનો વિનાશ નોતરે છે. સમાધાનનો પ્રસ્તાવ ન સ્વીકારનાર માણસ પોતાનો અને પોતાના કુટુંબનો વિનાશ કરી લે છે, તે તથ્ય આ રૂપક દ્વારા જણાવાયું છે. यहाँ पे दुर्योधन और उसकी टीम है वो जो शांति का संदेश लेके जो घटोत्कच आया है और श्री कृष्ण ने भेजा है, उनका संदेश एक्सेप्ट नहीं करते हैं. वो समाधान यानी कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं होती है. जो मनुष्य समाधान नहीं करता है वो अपना और अपने फैमिली का सर्वनाश करता है. ये यहीं पे दिखाया गया हुआ है. अभी हम आगे पाठ और एक क्वेश्चन आंसर समझे. उसके पहले जैसे मैंने कहा है,
हम पहले इसके समानार्थी विरोधी जो भी है उसका ग्रामर शब्दार्थ वे देखेंगे। तो चलो अभी हम वो देखते हैं। पहले तो हम ग्लोसरी देखते हैं। घटोत्कच, सन ऑफ भीम एंड हिडिंबा, पितामह ग्रैंडफादर, फादर्स फादर। चक्रयुद्ध यानी श्री कृष्ण, उनका जो सुदर्शन चक्र होता है तो इसको हम चक्रयुद्ध कहते हैं। कृष्णा, वन हु वाइल्स डिस्कस एज वेपन, जस्ट डिस्कस, वो अपने चक्र को अपनी फिंगर पे राउंड करते हैं, वो उनका हथियार है। सो पर हमें यहाँ पे चक्रयुद्ध यानी श्री कृष्णा ही नाम लिखेंगे। जनार्दन, कृष्णा, डिस्ट्रॉयर ऑफ वीक पर्सन्स, क्रूरतरः वेरी क्रूअल, निशाचरः डेमन, दूतघातकः डिस्ट्रॉयर यानी जो शांति का दूत लेके आते हैं उसको मारने वाला। सूर्यांशु, रे ऑफ द सन, कृतांतः यमराजा, यमराजा यानी मृत्यु के देव जो होते वो। दूतः एनवे, मैसेंजर। वसुंधरा, अर्थ, पृथ्वी यानी प्रकृति, नेचर। अवस्था, प्लाइट, स्टेट यानी दशा। स्वर्गम, हेवन। जतुगृहम, अ हाउस ऑफ सीलिंग वैक्स लस्कर, जस्ट मेड, इससे बनाया गया होता है लाखनों घर, लाख में से बनाया गया हुआ घर। अत्र भावन, योर मैजेस्टी। मे, मारू। भवंतम, टू यू। माम, टू मी। भवतः, योर। इयम, धीस। एषः, धीस। भवन्तः, यू ऑल। भवन्तं, तुम, टू यू। भवन्तः, टू और यू ऑल। सर्वम, एवरीथिंग। पश्चिमा संदेश तो यानी फाइनल मैसेज यानी लास्ट मैसेज। आसनस्थेन भवता धृतराष्ट्रेण, बाय यू धृतराष्ट्र, seated on the throne. कुरुकुल प्रदीप, यदुकुल प्रवाह अभिमन्यु, light of Kuru race, skin of Yadu race, અભિમન્યુ. જસ કુરુઓના કુળને દીપાવનાર, યદુઓના કુળના અંકુર, અભિમન્યુ. એ રીતે વાત થાય છે અહીંયા. ઇદસી અવસ્થા, સચ એસ condition state. પુત્ર શોક સમુત્થિતઃ અગ્નિઃ, rising from the grief of the son. यानी पुत्रना मरी गए अर्जुन, जो उसका अर्जुन का बेटा है अभिमन्यु, वो अभी उसको युद्ध में मार दिया गया है, तो उसके दुख से जो दुखी है, उसकी मौत किससे दुखी है वो, तो पुत्र के शोक से जला हुआ ऐसा। प्राणमयम, फुल ऑफ लाइफ ऑब्लेशन। रौद्रा राक्षसोग्रस्त स्वभावाः वयम, टेरिबल, प्रोसेसिंग द फियर्स नेचर लाइक डेमोन्स। यानी राक्षस के जैसा उग्र जलद स्वभाव वाला। समाहताः, गेदर्ड, ऑल टुगेदर, एक साथ। सुप्तान भ्रातून, तो हु वेर स्लीपिंग, सुतेला भाइयों ने, जो भाई सो रहे थे। पूरी स्टोरी में हम आगे देखेंगे। अये, ओ, पश्चात, thereafter, खलु यानी इंडीड, खरेखर। हाँ, अलास, पुनः, अगेन। ततः, then, इदानीम, एट प्रेजेंट। इति, लाइक दिस। यदि, इफ, वो, ओ। अब ये समास है, मोस्टली यहाँ से ही पूछे जाते हैं, तो ये एक बार आप कर लोगे तो बेटर रहेगा। अनार्य सतस्य, षष्ठी तत्पुरुष, अभी तो ये पता ही चल गया है, स्य आता है तो षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ पे हम इसको अलग करें, अनार्य सतस्य तो न आर्य सतम आता है, तो नय तत्पुरुष भी आता है, वो एक नय वाला ही हमें डिफाइन करना है, बाकी कोई हमें डिफरेंस नहीं देने हैं। अर्धोक्ते, षष्ठी तत्पुरुष। युधिष्ठिरादयः, युधिष्ठिरः आदि एषाते बहुव्रीहि। चक्रायुधः, चक्रम आयुधम यस्य सः बहुव्रीहि। धृतराष्ट्रः, धृतं राष्ट्रम येन सह बहुव्रीहि। बहुत अच्छे यहाँ पे। कुरुकुल प्रदीपः, कुरुकुलम कुरुकुलम, षष्ठी तत्पुरुष। कुरुकुलस्य प्रदीपः, षष्ठी तत्पुरुष।
यदुकुल प्रवालः षष्ठी तत्पुरुष एक पुत्र विनाशात, तो उसका भी हम षष्ठी तत्पुरुष ही कहते हैं। आत्मबलाधानम षष्ठी तत्पुरुष, आत्मबलस्य अधानाम, तो स्य वाला भी आता है षष्ठी तत्पुरुष ही। पुत्र शोक समुत्थित पुत्रस्य शोकः, तो षष्ठी तत्पुरुष। सर्वक्षत्रवधः षष्ठी तत्पुरुष। बाणयोग्यम बाणस्य योग्यम षष्ठी तत्पुरुष। राक्षसोग्र स्वभावः, वो भी मैं मानती हूँ षष्ठी तत्पुरुष ही होना चाहिए, पर राक्षसों के जैसा स्वभाव है जिसका, तो बहुव्रीहि समास भी देते हैं। अगर ऑप्शन में षष्ठी तत्पुरुष नहीं दिया है, बहुव्रीहि दिया है, तो वो आपको लिखना है। जतुगृहे षष्ठी तत्पुरुष। युद्धार्थम तृतीया तत्पुरुष। दूतघातकाः षष्ठी तत्पुरुष। मद्वचनागन्ता, यहाँ पे भी षष्ठी तत्पुरुष। जात्योपदेशः षष्ठी तत्पुरुष। सूर्याशुभिः सूर्यस्य अंशवः षष्ठी तत्पुरुष। प्रविश्य एंटरिंग। उपसृत्य अप्रोचिंग, गोइंग नियर। उत्थाय स्टैंडिंग अप। परित्यज्य लिविंग। द्रष्टुम टू सी, फॉर सीइंग। उपविष्टि यानी सीट बैठना। दहती टू बर्न, आग लगना, जैसे बर्न होता है वैसे। स्पृशति टू टच। प्रहरति टू स्ट्राइक, टू अटैक। व्याहरति टू स्टे, टू उटर। अभी हम नोट्स देख लेते हैं इसकी। चलो पहले देख लिए। अनार्य सतस्य ऑफ 100 इग्नोबल सन्स, यानी ये अभी ट्रांसलेशन में काम आएगा, जो भी ट्रांसलेशन होता है उसमें काम आएंगे ये नोट्स हमारे। तो 100 અનાર્ય પુત્રો, એનો એ અર્થ થાય છે ऊपर यहाँ जो व्याहरती है टू से, टू अटर यानी कहना ही। 100 अनार्य पुत्रों। ओके। उत्पादयिता प्रोड्यूसर जनरेटर। हियर फादर, जस्ट उत्पादयिता यानी ફાધરના અર્થમાં કીધું છે। કૌરવોના જસ ધૃતરાષ્ટ્રના અનુસંધાનને કહે છે એટલે। અભિવાદય आई बो डाउन, એટલે કે मैं अभिवादन करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। घटोत्क इति अर्धोक्ते, when he uttered half name घटोत्का, जस्ट वो घटोत इतना नाम बोल हाफ बोल के वो स्टॉप हो जाता है, बोल रहा होता है तभी। अयम अक्रम, दिस इज नॉट द प्रॉपर ऑर्डर, ये प्रॉपर क्रम नहीं है। क्रम यानी जो 1 2 3 4 आता है वो प्रॉपर क्रम नहीं है, वो हम लेसन देखते हैं तभी पता चलेगा। एहि एहि पुत्र, आओ पुत्र आओ, कम सन कम। अहो कल्याणं खलु अत्र भवान, ओ योर मैजेस्टी इज इंडीड नोबल। ओह आप तो कल्याण रूप हो। प्रसूति टू प्रोड्यूसर। आह हैज सेड, कह रहे हैं। श्रूयताम लिसन, सुनना। आसन स्थेन सीटेड ऑन थ्रोन, आसन पर बैठने वाला। શ્રોતવ્ય શુડ લિસન, સાંભળવો જોઈએ। આસન પર બેસીને સાંભળવું જોઈએ। હા વત્સ અભિમન્યુ, ओ सन अभिमन्यु। हाय रे, ये दुख में बोले गए, तो हाय रे सन पुत्र अभिमन्यु। अभिगतः असि, यू हैव गॉन। एक पुत्र विनाशात, बाय रुइन किलिंग ऑफ वन सन, यानी एक पुत्र का विनाश हो गया है, उसको मार दिया गया है। क्षिप्रम क्विकली, जल्दी से। आत्मबलाधानम, तो आत्मबलाधानम कुरुद्व, यू समवन अप स्ट्रेंथ इन योर सोल, यानी आत्मा में बल को धारण करने वाला। वाक्य मात्र बाय मेर वर्ड्स, बाण ने छाजे એવું। सर्वक्षत्रवधः किलिंग, स्लॉटर ऑफ ऑल क्षत्रियस, यानी ऑल क्षत्रिय को मारना। बाण योग्यम वे फिटिंग आर्चरी। बाण ने छाजेव प्रकृतिम गतः डिस्प्लेड हिज ओरिजिनल नेचर।
अपने ओरिजिनल नेचर को वो बता रहा है वो। शांतम पापम ओह नो, हाउ कैन इट बी, ब्रदर्स यसी यू आर इंसल्टिंग मी, आप मेरा अपमान कर रहे हो, वैसा बोलते हैं यहाँ पे। मा ताक्त वो, इट कैन नॉट बी लाइक दैट, प्रहरध्वम, यू स्ट्राइक अटैक, मर्सयतु भवान, यू प्लीज pardon forgive, मद्वचनागन्ता भव, अंडरस्टैंड माय वर्ड्स, कुरु स्वजनक्षेप्याम, कुरु स्वजनव्यपेक्षां, you fulfill the expectation of your relatives, kinsmen, कांक्षितं मनसि, whatever desired in mind, सर्वम् इह अनुतिष्ठ, enjoy all here, जात्योपदेशः इव, as it is the preaching of life, जात्य noble family, पांडव रूपधारी इन द guise of पांडवा यानी अर्जुना, उपिष्यति will approach, वह to you for you। अभी हम संधि देख लेते हैं। युधिष्ठिरादयश्च, युधिष्ठिरादयचः, युधिष्ठिरादयः प्लस च, गुरुवो भवन्तं, तो गुरवः भवन्तं, घटोत्कच हम, तो घटोत्कचः अहम, श्रोतव्यो जनार्दनस्य, श्रोतव्यः जनार्दनस्य, स्वर्गं विगतोऽसि, स्वर्गम् अभिगतः असि, पुनर्भवतो भविष्यति, पुनः भवतः भविष्यति, पुत्रशोकसमुत्थितोऽग्निः न, पुत्रशोकसमुत्थितः अग्निः न, हविरिति, तो हविः इति, हवનમાં જે અગ્નિ નાખવાનો હોય એ હવિ, शकुनिरेष व्याहरति, तो शकुनि प्लस एषः प्लस व्याहरति, राक्षसेभ्योऽपि, तो राक्षस्यः प्लस अपि, भवन्त एव, तो भवन्तः प्लस एव, प्राप्तो न, तो प्राप्तः न, दूत इति, दूतः इति, दूतोऽहं, दूतः प्लस अहम, जात्योपदेश इव, तो जात्योपदेशः इव। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बुक का जो ग्रामर है वो पूरा होता है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम चालू करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर जनार्दन से पश्चिम संदेश, उसका ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। तो घटोत्कचः प्रविश्य अयम् अत्र भवान् धृतराष्ट्रः, घटोत्कच एंटरिंग, अहो हियर इज मेजेस्ट्री ધૃતરાષ્ટ્ર, પ્રવેશ કરીને ઘટોત્કચ બોલે છે, અરે આ શ્રીમાન ધૃતરાષ્ટ્ર છે। घटोत्कच प्रवेश करके, अरे ये श्रीमान धृतराष्ट्र है। अनार्य सतस्य उत्पादयिता, द फादर ऑफ द इग्नोबल 100, जस्ट सो अनार्य पुत्रों ना जनक, 100 उनके जो बेटे थे वो 100 कौरवास थे, तो 100 अनार्य पुत्रों के जनक यानी पिता। उपसृत्य पितामह अभिवादये घटोत्क, ग्रैंडफादर हियर आई सैल्यूट यू, आई एम घटोत, जस्ट वो पास जाके बोलता है धृतराष्ट्र को, पितामह प्रणाम करता हूँ घटोत्क, जस्ट हाफ बोल के, आधा बोल के, પાસે જઈને પિતામહ પ્રણામ કરું છું એવું જ બોલે છે ઘટોત્કચ ધૃતરાષ્ટ્રને। અડધું જ હજુ તો બોલે છે, હું ઘટોત્ક અડધું બોલીને, ન ન અયમ અક્રમઃ, નો નો ધીસ ઇઝ નોટ ધ proper order, ના ના આ ક્રમનો ભંગ છે, જસ્ટ ये proper order नहीं है, ક્રમનો ભંગ છે। युधिष्ठिरादयश्च मे गुरवो भवन्तं वादयन्ति, it is my elders Yudhishthir and the rest that salute, and after then, जस्ट वो बोलता है कि पहले वो तो भीम का बेटा था, तो उसके पहले युधिष्ठिर आता है,
તો युधिष्ठिर અને મારા વડીલો આપને प्रणाम करे छे। युधिष्ठिर और मेरे सारे बाकी के जो वडील है मुझसे ज़्यादा जो बड़े हैं वो आप सबको प्रणाम करते हैं। पश्चात घटोत्कचयो हम अभिवादये। आफ्टर देन आई घटोत्कच सैल्यूट यू। एना पछी हूँ घटोत्कच आपने प्रणाम करूँ छूँ। ये मेरे युधिष्ठिर और सारे जो मेरे से बड़े हैं वो वडील आपको प्रणाम करते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धृतराष्ट्र अहि अहि पुत्र। धृतराष्ट्र कम कम माय सन। धृतराष्ट्र बोलता है कम कम आओ आओ मेरे बेटे। जस्ट धृतराष्ट्र आओ आओ पुत्र। घटोत्कच अहो कल्याण खलु अत्र भवान। ओ हाउ नोबल यू मैजेस्टी इज। घटोत्कच बोलता है ओ आप कितने कल्याणकारी हो। घटोत्कच कहे छे अहो आप से साचे कल्याणकारी छो। कल्याणनाम प्रसूतिम पितामहमाह भगवान चक्रायुध। चक्रायुध यानी यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान सुदर्शनधारी। लॉर्ड श्री कृष्णा हैज द मैसेज टू माय ग्रैंडफादर द सोर्स ऑफ ऑल ऑस्पियस थिंग्स। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કલ્યાણ વસ્તુઓના ઉદ્ભવ સ્થાન એવા આ पितामह કહ્યું છે कि वो जो घटोत्कच यहाँ पे एक ऐसे दूत बन के आया हुआ है, तो वो पहले मैसेज जो श्री कृष्ण ने यानी चक्रधारी सुदर्शनधारी श्री कृष्ण ने उसको मैसेज कहा है कि कल्याण रूप चीज़ों के उत्पादक वैसे आप पितामह को बोला है कि धृतराष्ट्र आसनात् उत्थाय किमाज्ञापयति भगवान चक्रायुधः। Dhritarashtra rising from the seat. What are the commands of the divine wielder of the discus? यानी धृतराष्ट्र आसन परથી ઊભા થઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ શું આજ્ઞા આપી છે। अभी घटोत्कच कुछ बोलता है कि श्री कृष्ण ने चक्रधारी ने आपको ये बोला है, वो तो धृतराष्ट्र आसन पर से खड़ा होकर पूछता है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या आदेश दिया है, क्या आज्ञा दी है। घटोत्कच न न न आसने स्थिन एव भक्ता श्रोतव्यो जनार्दनस्य संदेशः। घटोत्कच नो 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 योर मेजेस्टी should listen to the message of Sri Krishna being seated on the seat. ઘટોત્કચ ના 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 આસન પર બેઠેલા જ આપે શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશ સાંભળવો જોઈએ। वो धृतराष्ट्र है वो जो खड़ा हो जाता है आज्ञा सुनने के लिए, श्री कृष्ण का आदेश सुनने के लिए, तो घटोत्कच कहता है ना 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 आप आसन पर बैठे बैठे ही श्री कृष्ण का संदेश सुनिए। धृतराष्ट्र यदा ज्ञापयति भगवान चक्रायुधः उपविशति। धृतराष्ट्र एज लॉर्ड श्री कृष्ण कमांड्स सिट डाउन। धृतराष्ट्र जेवी श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा बैसी जाए छे। धृतराष्ट्र कहता है कि जैसी श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा वो बैठ जाता है। घटोत्कच पितामह श्रूयताम हा वत्स अभिमन्यु हा वत्स कुरुकुल प्रदीपः हा वत्स यदुकुल प्रवाल। घटोत्कच लिसन ग्रैंडफादर ओ चाइल्ड अभिमन्यु माय चाइल्ड the lamp of the Kuru dynasty, the succession of the Yadu family. पितामह सांभळो हाय पुत्र अभिमन्यु, हाय पुत्र कुरुकुलना तेजस्वी दीपक, हाय पुत्र यदुकुलना अंकुर। जस्ट घटोत्कच अभी जो बोलता रहा है वो अभिमन्यु के मुताबिक अभिमन्यु के लिए अभिमन्यु का बता रहा है कि वो उसकी डेथ हो गई है कपट से रणभूमि में। सो वो जो दुख होता है वो यहाँ पे प्रकट करता है। तो बता रहा है घटोत्कच धृतराष्ट्र को पितामह सुनिए हाय पुत्र अभिमन्यु, हाय पुत्र कुरुकुल के तेजस्वी दीपक, हाय पुत्र यदुकुल के अंकुर। तव जननी मातुलम मामपि परित्यज्य पितामहः द्रष्टुमाशया स्वर्गमि भगतोऽसि। You have left your mother and me, your maternal uncle too, and have gone to the heaven in the hope of meeting your grandfather. Just
તારી માતાને, મામાને અને મને પણ ત્યજીને પિતામહને મળવાની ઈચ્છાએ તું સ્वर्गे सिधाव्यो छे। यहाँ पे अभिमन्यु मर चुका है तो घटोत्कच श्री कृष्ण का संदेश लेके आया है और ये सब बोलता है कि तू अपनी माता को, मामा को और मुझे भी छोड़ के पितामह को मिलने के लिए ऊपर स्वर्ग में चला गया है। एक पुत्र विनाशात् अर्जुनस्य तावत् ईदृशी खलु अवस्था का पुनर्भवतु भविष्यति। Grandfather, such is the plight of Arjun as a result of the death of one son. What then will be yours? यहाँ पे ઘટોત્કચ ધૃતરાષ્ટ્ર को कहता है कि પિતામહ, એક પુત્રના વિનાશથી અર્જુનની આવી અવસ્થા છે તો વળી આપની કેવી હશે? અર્જુનનો એક જ પુત્ર હતો જ્યારે કૌરવો 100 હતા. જો એક જ પુત્રથી અર્જુનની, એક પુત્રના વિનાશથી અર્જુનની આવી સ્થિતિ છે તો 100 पुत्रना विनाशથી તમારી કેવી સ્થિતિ હશે? घटोत्कच कहता है धृतराष्ट्र को कि एक ही पुत्र के चले जाने से अगर अर्जुन की ऐसी स्थिति है तो फिर आपके पुत्र तो 100 है, आपकी स्थिति कैसी होगी? आगे देखते हैं। ततः क्षिप्रम इदानीम आत्मबलाधानं कुरुध्व यथा ते पुत्र शोक समुत्थितो दहेत्याप्राणमयं हविरिति। So quickly summon up all the strength of your soul, so that the fire rising from the grief for your sons should not burn your life like an oblation. તો અત્યારે ઝડપથી પોતાના પક્ષની સેનાને પાછી વાળી લો, જેથી પુત્રના શોકથી ઉઠેલો અગ્નિ ભવિષ્યની જેમ તમારા प्राण बाળી न नाखे। तो यहाँ पे अभी तो युद्ध का स्टार्टिंग हो ही रहा है, तो घटोत्कच कहता है कि आपने जो अपनी सेना है उसको वो ना, ये जस्ट बात क्या है, पार्ट क्या है, अभी युद्ध ज़्यादा नहीं, क्योंकि फैमिली के बीच में ही है तो फैमिली का ही कोई मेंबर चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। उससे दुखी होकर ये संदेश है श्री कृष्ण भगवान इन लोगों को पहुंचाने में कि ट्राई करते कि अभी और ज़्यादा विनाश ना हो। तो वो घटोत्कच थ्रू ये संदेश भिजवाते हैं और कहते हैं कि जब जितनी हो सके आप अपनी सेना को जल्दी से वापस बुला लो। जैसे थे अर्जुन जो अभी अपने पुत्र के मौत के दुख से जो ज्वाला एज अग्नि की तरह जल उठाए, वो कहीं आप लोगों को भी जला ना डाले। जस्ट भविष्य यानी हम यज्ञ में बैठते हैं और जो हम अग्नि देते हैं वो आपको जला न डाले। शकुनिः यदि स्याद् वाक्यं मात्रेण निर्जितेयं वसुन्धरा, वाक्ये यदि भवेत् सर्व क्षत्रवधः कृतः। शकुनि, if it were possible to conquer the earth by mere words, if by words and yet more words it could be done, all the warriors were indeed killed. शकुनि कहता है जो वाक्य मात्र थी आ पृथ्वी जीताई जाए અને जो वाक्य सर्व क्षत्रियों वध कराते होय। शकुनि यहाँ पे तो दुर्योधन का मामा वो बोलता है कि जो वाक्य यानी एक सेंटेंस, ओनली वन सेंटेंस है जो ये पृथ्वी हम जीत सकते हैं, और एक ही सेंटेंस से हम लोग क्षत्रियों का वध यानी उनको मौत दे सकते हैं। घटोत्कच शकुनि रेस व्याहरति। घटोत्कच कहता है दिस इज शकुनि स्पीकिंग। घटोत्कच आ शकुनि बोले छे। भो शकुने अक्षान विमुच्य भव बाण योग्य। ओ शकुनि लिविंग डाइस बी प्रिपेर्ड फॉर एरोज। घटोत्कच કહે છે હે શकुनि જુગટા એટલે એ જુગાર રમતો હતો ચોકઠા, જેમાં હારી ગયેલા હતા પાંડવો, જુગટાના પાસા છોડીને બાણ ધારણ કરવા યોગ્ય था। घटोत्कच शकुनि को बोलता है कि शकुनि अभी ना ये जुगटे के यार चौपाट के पास से छोड़ के युद्ध करने के लिए काबिल बन, युद्ध करने के लिए तैयार था, ऐसा बोलता है। दुर्योधनः भो प्रकृतिं गतः वयमपि खलु रौद्रा राक्षसो ग्रस्व भावाः। दुर्योधन अभी यहाँ कहता है आहा, he displays his original nature, we
टू आर टेरिबल हैविंग द फियर्स नेचर ऑफ डेमोन्स. દુર્યોધન કહેતા હે ઓ પોતાના સ્વભાવ પર ગયો, અમે પણ ખરેખર રૌદ્ર રાક્ષસો જેવા ઉગ્ર સ્વભાવવાળા છીએ. घटोत्कच शकुनी और धृतराष्ट्र बच्चे जो उनके तीनों के बीच जो बातें होती है वहाँ पे दुर्योधन बोलता है ओह ओ. जो ये घटोत्कच कहता है कि युद्ध करने के लिए तैयार था, ऐसा बोलता है शकुनी को. तब दुर्योधन बोलता है अपने स्वभाव पे गया है, हम भी राक्षस जैसे ही उग्र स्वभाव वाले हैं. वैसे दुर्योधन घटोत्कच को बोलता है. घटोत्कच शांतं पापम राक्षसेभ्योऽपि भवन्त एव क्रूरतराः. घटोत्कच हेवन फॉरबिड यू आर मच मोर ruthless than demons. ઘટોત્કચ કહે છે પાપ શાંત થાઓ, રાક્ષસો કરતા પણ આપ જ વધારે ક્રૂર છો. दुर्योधन जैसे बोलता है कि हम भी राक्षसों के जैसे उग्र स्वभाव वाले. तब घटोत्कच कहता है कि शांत थाओ भाई, आप लोग तो राक्षसों से भी ज्यादा क्रूर हो. न तु जत्रुगुहे सुप्तान भ्रातॄन् दहन्ति निशाचराः शिरसि न तथा भ्रातुः पत्नीं स्पृशन्ति निशाचराः. Just the demons don't burn their brothers asleep in a house of lac. Similarly, the demons don't touch that way the head of the brother's wife. નિશાચરો યાની રાક્ષસો પણ લાક્ષાગૃહમાં સૂતેલા ભાઈઓને બાળી નાખતા નથી. રાક્ષસો ભાઈની પત્નીના મસ્તક પર સ્પર્શ કરતા નથી. यहाँ पे दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी को छुआ था, उसके कपड़ों को, उसके सर को, और जो पांडव थे वो एक गुरु में सोए हुए थे उनको जला दिया था. तो ये बात की डिस्कस यहाँ पे कही गई है. तो घटोत्कच बोलता है कि जो राक्षस होते हैं वो भी अपने लाक्षागृह यानी लाख के बनेले गृह में सोते हुए भाई को जलाते नहीं है और भाई की पत्नी को स्पर्श भी नहीं करते हैं. दुर्योधन दूतः खलु भवान् प्राप्तो न त्वं युद्धार्थमागतः. दुर्योधन यू हैव इंडीड कम हियर एज एन एनवॉय एंड नॉट टू फाइट. दुर्योधन फिर बोलता है आप सच में यहाँ पे एज अ शांति दूत आए हो, युद्ध के लिए नहीं आए हो ना. दुर्योधन खरेखर તમે દૂત તરીકે આવ્યા છો, તમે યુદ્ધ માટે આવ્યા નથી. ગૃહીત્વા ગચ્છ સંદેશમ ન વયમ દૂતઘાતકાઃ. ટેક યોર મેસેજ એન્ડ ગો, વી આર નોટ ધોઝ હુ કિલ ધ મેસેન્જર્સ. दुर्योधन કહે છે કે સંદેશ લઈને જાઓ, અમે દૂતને મારનાર નથી. दुर्योधन यहाँ पे ऐसे बोलता है कि તમે दूत तरीके આવ્યા છો युद्ध માટે. दुर्योधन कहता है यहाँ पे आप एज अ शांति दूत आए हो, युद्ध करने के लिए नहीं आए हो. तो आप एज अ दूत यहाँ से संदेश ले जाओ, हम लोग दूत को मारना नहीं है. घटोत्कच सरोसम किम दूत इति मा प्रदर्शि मा तावत भोः. घटोत्कच एंग्रीली आर यू इंसल्टिंग मी सेइंग दैट आई एम एन एनवे. यहाँ घटोत्कच रोषपूर्वक यानी गुस्साમાં કહે છે કે દૂત કહીને મને અપમાનિત કરો છો. घटोत्कच कहता है गुस्से से और रोषपूर्वक कि दूत कह के आप मेरा इंसल्ट कर रहे हो, अपमान कर रहे हो. मा तावत भोः न दूतोऽयं प्रहरध्वं समाहता सर्वे उत्तिष्ठन्ति. No indeed, I am not an envoy. Strike me all together, all get up. જે ઘટોત્કચ કહે છે દૂત કહીને મને અપમાનિત કરો છો, જેમ હોય તો હું દૂત નથી, ભેગા મળીને પ્રહાર કરો, એટલે કે મારો સામનો કરો. બધા ઉઠે છે. यहाँ पे घटोत्कच सबको वहाँ पे जो गया हुआ है राजसभा में वो सबको बोलता है कि एज अ दूत आप लोग मेरा इंसल्ट कर रहे हो, जो ऐसा ही है तो मैं दूत नहीं हूँ, सब साथ मिलके मेरा सामना करो, लड़ाई करो मुझसे. तो सब उठ जाते हैं. धृतराष्ट्र पौत्र घटोत्कच मर्शयतु भवान् मद्वचनावगन्तः भव. धृतराष्ट्र घटोत्कच my grandson, please forbear, pay heed to what I am saying. ધૃતરાષ્ટ્ર पौत्र घटोत्कच તમે क्षमा करो, મારા વચનોને समझनारा बनो. तो यहाँ पे धृतराष्ट्र से वो घटोत्कच को कहता है ये सब सुन के कि पुत्र घटोत्कच आप
शांत था, समा दो इनको, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझनार बनो आप। चलो अभी आगे देखते हैं। घटोत्कच। भवतु भवतु पितामहस्य वचनात् दूतो अहमस्मि। घटोत्कच बोलता है, ऑल राइट, लेट इट बी, आई एम एन एनवे एट ग्रांड फादर्स वर्ड। घटोत्कच, भले भले पितामहना कहवाथी हूँ दूत छू। घटोत्कच कहता है, ओके ओके, पितामह यानी अभी जो बोल रहा है धृतराष्ट्र, उनके कहने पर मैं दूत हूँ। पोपो राजान श्रूयताम जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः। ओ यू किंग्स, लिसन टू द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्णा। वहाँ पे जो सभा में बैठे थे सारे राजाओं को सब वो कहता है, ओ राजाओं, अभी आप श्री कृष्ण का लास्ट अंतिम संदेश सुनिए। घटोत्कच, भले भले પિતામહના કહેવાથી હું દૂત છું, અરે ઓ રાજાઓ, શ્રીકૃષ્ણનો અંતિમ સંદેશ સાંભળો. ધર્મ સમાચર કુરુ સ્વજન વ્યપેક્ષામ યત્કાક્ષિતમ મનસી સર્વમિહાનુતિષ્ઠ જાત્યોપદેશ ઇવ પાંડવ રૂપધારી સૂર્યાંશુભિઃ સમુપૈસ્પતિ વ કૃતાંતઃ. Do what is right. Fulfill the particular expectations of the brothers. Whatever is desired in your mind, do all that here in this world. For with the rays of the sun, that in the gives of Pandavas, as if it was the most excellent advice, will come upon you. ધર્મનું આચરણ કરો, સ્વજનોની ચિંતા કરો, જે કંઈ મનમાં ઈચ્છેલું હોય તે બધું અહીં કરી લો. હિતકારક ઉપદેશની માફક પાંડવના રૂપમાં યમરાજ સૂર્યના કિરણો સાથે તમારી સામે આવશે. जैसे यहाँ पे श्री कृष्ण जो लास्ट मैसेज देते हैं वो यही है, धर्म का आचरण करो यानी धर्म को अनुसरो, अपने लोगों की चिंता करो, जो कुछ भी मन में आपने तय किया हो वो यहीं पे कर लो. हितकारक यानी पॉजिटिव, हितेच्छु अच्छा सोचने वाले, उन लोगों की माफक उनकी तरह पांडवों के रूप में जो यमराज श्री कृष्ण यमराज आते हैं सूर्य के किरणों के साथ, वो आपके सामने आएंगे. तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन पूरा हुआ है. अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं टेक्स्ट बुक की. फर्स्ट, विकल्पे भव्यः समुचितम उत्तरम चिनुत. पहला, यदुकुल प्रवालः कः. फर्स्ट ऑप्शन है क घटोत्कचः, ख अर्जुनः, ग अभिमन्युः, ग दुर्योधनः. तो सही जवाब है ग अभिमन्युः. सेकंड, अभिमन्युः कस्य पुत्रः आसीत्. क जनार्दनस्य, ख धृतराष्ट्रस्य, ग अर्जुनस्य, घ शकुनेः. सही जवाब है ग अर्जुनस्य. थर्ड, अभिमन्योः मातुलः कः. क दुर्योधनः, ख शकुनी, ग जनार्दनः, घ घटोत्कचः. तो सही जवाब है ग जनार्दनः. फोर्थ, शांतं पापम इति कः वदति. ऑप्शन है क घटोत्कचः, ख धृतराष्ट्रः, ग शकुनिः, घ अर्जुनः. सही जवाब है क घटोत्कचः. 5, वयं दूतघातकाः नः. इदं वाक्यं केन कथितम्. ऑप्शन है क दुर्योधनेन, ख घटोत्कचेन, ग शकुनिना, घ धृतराष्ट्रेण. सही जवाब है क दुर्योधनेन. 6, चक्रयुद्धः कः. ऑप्शन है कः अभिमन्युः, ख जनार्दनः, ग धृतराष्ट्रः, घ शकुनिः. सही जवाब है ख जनार्दनः. 7, भवन्तः ब्लैंक अपीकृतराः. क राक्षसान्, ख राक्षसैः, ग राक्षसेभ्यः, घ राक्षसेषु. सही जवाब है ग राक्षसेभ्यः. 8, कृतान्तः शब्दस्य कः अर्थः. क पांडवः, ख सूर्यः, ग यमराजः, घ नष्टः. तो सही जवाब है ग यमराजः. एक वाक्यं संस्कृत भाषया उत्तरत्. फर्स्ट, घटोत्कचः कस्य संदेशं नयति. घटोत्कचः जनार्दनस्य संदेशं नयति. ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वाक्य है यानी एक शब्द ही हमें ऐड करना होता है, पर क्वेश्चन पेपर में तो मीन्स आंसर में तो पूरा आंसर लिखना है. सेकंड, अभिमन्युः कम द्रष्टुम स्वर्गम अभिगतः.
अभिमन्युः पितामहं द्रष्टुं स्वर्गम् अभिगतः। थर्ड, कुत्र सुप्तान् भ्रातॄन् निशाचराः न दहन्ति? चतुर्गृहे सुप्तान् भ्रातॄन् निशाचराः न दहन्ति। 4. घटोत्कचः कस्य वचनात् दूतः भवति? घटोत्कचः जनार्दनस्य वचनात् दूतः भवति। थर्ड, क्रोधनतानां प्रकारम लिखत। यहाँ तो टेक्स्ट बुक के ही पूछा थे, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। इसका मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जो एग्जाम में आपको पूरा मार्क्स दे और बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। श्रोतव्यः तो विध्यर्थ भूत कृदंत, परित्यज्य संबंधक, अभिगतः कर्मणि, उपसृत्य संबंधक, द्रष्टुम हेत्वर्थ, कादिक सक्तम कर्मणि। संधि विच्छेद करिए। घटोत्कच ड नहीं बोलते हैं, घटोत्कच हम, पीछे जो हम है तो आगे अहम लिखना है और घटोत्कच प्लस अहम। शकुनी रेसह तो शकुनी ही प्लस एसह, रेस में से एस निकल जाता है। दुतो ड नहीं बोलना है, दुतो हमस्मि तो दुतः प्लस अहम प्लस अस्मि। दुतः इति तो दुतः इति। समास कुरुकुल प्रदीपः तो षष्ठी तत्पुरुष समास। सेकंड, चक्रायुध बहुव्रीहि समास। 3, पुत्र शोक समुत्थित षष्ठी तत्पुरुष समास। धृतराष्ट्र बहुव्रीहि समास। रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितं पदम चित्वा प्रश्नवाक्यम रचयत। हमें ऑप्शन दिए, हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट, घटोत्कचः पितामहम् अभिवादयति। घटोत्कचः कम अभिवादयति। सेकंड, त्वं युद्धार्थ न आगतः तो त्वं किमर्थं न आगतः। थर्ड, वयं दूतघातकाः न तो आंसर है वयं कीदृशा नः। 4, जनार्दनस्य पश्चिमः सन्देशः श्रोतव्यः तो कस्य पश्चिमः सन्देशः श्रोतव्यः। अभी कोष्ठगत पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। हमें यहाँ पे इंग्लिश में सेंटेंस दिए होते हैं, फिर उसके नीचे ब्रैकेट में संस्कृत वर्ड्स दिए होते हैं, उसमें से हमें संस्कृत शब्द बनाने हैं, वही शब्दों को यूज़ करके। ये लेसन में दिए गए हैं, तो आपको एक बार लेसन पढ़ना ही है, तभी आपको आइडिया आएगा इसका। फर्स्ट, धृतराष्ट्र वॉज द फादर ऑफ कौरवास तो धृतराष्ट्र कौरव जनक अस। यहाँ पे बहुत प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो प्लूरल के रूप फॉर्म में बोलना है। धृतराष्ट्र कौरवाणाम जनक आसीत। कौरवाणाम बहुवचन हो गया है, तो यहाँ पे आसीत आ जाएगा। टेक्स्ट बुक का ही सेंटेंस है। घटोत्कचः ब्रिंग्स द मैसेज ऑफ जनार्दना। घटोत्कचः जनार्दन संदेश आ प्लस नि नय तो घटोत्कचः जनार्दन से यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आएगी। जनार्दनस्य संदेशम એટલે जनार्दन यानी कृष्ण भगवानનો संदेश, तो घटोत्कचः जनार्दनस्य संदेशम आनयति। थर्ड, वी आर नॉट द किलर ऑफ एन एन्वय। अस्मद्दूतघातक न तो वयम दूतघातकाः न। अस्मद का यहाँ पे वयम आ जाता है। ये लेसन का ये सेंटेंस से बस एक बार है रिक्वेस्ट, एक बार अच्छे से लेसन पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। संस्कृत में आप क्या पूरे मार्क्स आ ही जाएंगे। घटोत्कचा बोस टू धृतराष्ट्र। घटोत्कच धृतराष्ट्र प्र प्लस नम तो घटोत्कच धृतराष्ट्रम प्रणमति। अभी आलंग भाषायाम उत्तरम लिखत, यानी इंग्लिश में आपकी जो लैंग्वेज है मदर टंग है उसमें लिखना है। फर्स्ट, व्हाट डज घटोत्कचा एडवाइज शकुनी टू डू। आंसर, Ghatotkacha advises Shakuni to give up the game of dice and be prepared to fight with the arrows. Second, why does Ghatotka call Duryodhana more cruel than a demon? Duryodhana tried to burn his own brothers, यानी पांडवास, वो कजिन थे इसलिए, in a house made of lascar. Even a demon would not do such a cruel thing. Quoting these evil deeds, Ghatotkacha calls Duryodhana more cruel than a demon. He did say, sorry, थोड़ा सा mistake. Third, describe Arjuna's lamentation on Abhimanyu's death. Lamenting the death of Abhimanyu in the battlefield, Arjun says, "Alas, O son, the burning lamp of the Kaurav density
The section of Yadukul, leaving your mother Subhadra and myself, you went to meet your grandfather Pandu in the heaven. तो अभी हम शॉर्ट नोट्स देखते हैं. फर्स्ट, अलंग भाषायां संक्षिप्तम टिप्पणम लिखत. फर्स्ट, characterization of Ghatotkacha. In spite of being the son of a demoness Hidamba, Ghatotkacha behaves like a perfect gentleman. He does not forget mention the elders like Yudhishthir when he bows down to Dhritarashtra. He shows his respect for Dhritarashtra further by describing him as the source of all auspicious things. While talking with Duryodhana and Shakuni, shows his skill in repartee. Although the scene Ghatotkacha wins our sympathy and respect. Second, message conveyed by Sri Krishna. Ghatotkacha conveys Sri Krishna's message to Dhritarashtra first and a final message to all Kuru princes later. In the first message, Sri Krishna warns the old king Dhritarashtra about the grim future of losing 100 sons and asks him to be prepared. In the final message, Duryodhana and other princes are told that death would come upon them with the rays of the sun. Lord Sri Krishna's message begins with short, benign sentence Dharma Samachar. Do what is right. Have regard for your kinsmen. Whatever is your desire, fulfill here on the earth prepares us for the final climax. Death will come upon you with the rays of the sun. तो यहाँ पे शॉर्ट्स ये जो टेक्स्ट बुक की है वो शॉर्ट्स नोट पूरी हुई है. अभी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा समानार्थी विरोधी और जो ग्रामर के 2-3 पॉइंट है वो देख लेते हैं. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कभी भी जस्ट एक्स्ट्रा में नहीं आता है तो एक्स्ट्रा नहीं करना है, और जो विभक्ति है वो सब एक शॉर्टकट में बता दूंगी. तो ये समानार्थी विरोधी मोस्टली मैं वो ही ले रही हूँ, बाकी इससे ज़्यादा भी नहीं, सब कुछ टेक्स्ट में से ही पूछाता है. तो आगे इसमें और ज़्यादा इतनी ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, देन चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं. समानार्थ शब्द. घटः, दूतः चषकः कुंभः. तो घटः का समानार्थी है कुंभः. उत्पादयिता, तो जनयिता स्वसुरम भागिने. उत्पादयिता का समानार्थी है जनयिता. चक्रायुधः, तो नीलकंठ हलायुधः जनार्दन. तो चक्रायुधः यानी जनार्दनः. स्वर्गम, दिवम अंतरिक्षम भूलोकः. तो स्वर्गम तो दिवम. क्षिप्रम, शनैः तूर्णम तिर्यकः. तो क्षिप्रम का समानार्थी है तूर्णम. वसुंधरा, बालुका मेदिनी भुवनम. तो वसुंधरा का है मेदिनी. युद्धम समरः संधिः अक्रालः. युद्धम का समानार्थी है समरम. सूर्यांशु, मरीचिः मरीवः दिवाकरः. तो सूर्यांशु का समानार्थी है मरीचिः. अभी विरोधी शब्द देखते हैं. अर्धम, तो सपादमः अर्धमः पूर्णम. तो अपोजिट है, तो अर्धम तो पूर्णम. उत्थाय, उपविश्य प्रविश्य गत्वा. उत्थाय का अपोजिट उपविश्य. स्वर्गम, तो वैकुंठम त्रिविष्टम नरक. तो स्वर्गम तो नरक अपोजिट. निर्जिता, विजेता पराजिता सुस्थिरा. तो पराजिता. क्रूरः, तो अक्रूरः अरातिः रुजु. तो क्रूर का अपोजिट अक्रूरः. अधोदत्तानां वाक्यानां स्म प्रयोगं कृत्वा वाक्यं पुनः लिखत. तो यहाँ पे आगे जैसे बताया था स्म का प्रयोग कैसे करना है, मैंने इसका शॉर्टकट बहुत जल्दी बना दूंगी. अभिमन्युः स्वर्गम अगच्छत. तो अभिमन्युः स्वर्गम गच्छति स्म. अभिमन्यु अकेला है तो गच्छत है तो गच्छति हो जाएगा और पीछे स्म और फुल स्टॉप. गुरवः भवन्तं, यहाँ पे बहुवचन है तो गुरवः भवन्तं अभिवादयन्. तो गुरवः भवन्तं अभिवादयन्ति स्म. घटोत्कचः दूतः आसीत्. घटोत्कचः दूतः अस्ति स्म. सर्वे अतिष्ठन्. तो सर्वे तिष्ठन्ति स्म. ये टेक्स्ट बुक का ही है. टेक्स्ट बुक में ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक एक बार तो रीड करनी है. तो बच्चों, आई थिंक ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.